Hello, hi everyone. Good evening to all of you. Uh, Welcome to my channel Arkeja Technical. My name is Ronit Kumar Jha. So this is my third video after a long time gap. Uh, Basically, the main intention why I have created this YouTube video channel is to bring awareness amongst all of us, regarding the BI tools and AI tools and some ERP softwares currently running in trends in market industry. Okay. So right now, I will teach you all these softwares and ERP softwares and applications, BI tools and AI tools, step by step. First, I will cover the Microsoft Excel at beginning, to cover the and to build a base for you. So in last two sessions, I have covered a introduction part, or what are the ways and shortcut keys to open the Microsoft Excel. That is a rarely known shortcut command which I have shared you earlier. After that, today's session we will cover these all five steps and phases of Microsoft Excel. First is introduction part, second is advantages, third is limitations and drawbacks, fourth is history of Microsoft Excel, where it begins from, and right now what the current version is going on. And the last but not least is the conceptual part, some question conceptual part I will share with you about Microsoft Excel, the some definitions like. Okay, so just proceeding with the slide. Next, first is introduction to Microsoft Excel. What is about of Microsoft Excel होता क्या है, ठीक है? Microsoft Excel क्या होता है बेसिकली? तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, Microsoft Excel is a widely used electronic spreadsheet application developed by Microsoft. It's a part of the Microsoft Office suite and is available for both Windows and Mac operating systems. Excel provides a powerful platform for data analysis, calculation, and visualization. इसका मतलब क्या है? फर्स्ट लाइन का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, मीन्स कि पुराने ज़माने में या इन ओल्ड ट्रेडिशंस क्या करते थे लोग कि डेटा मेंटेन करने के लिए हार्ड कोर एंट्रीज करते थे डायरीज के ऊपर, कॉपीज के ऊपर, ठीक है? वहाँ पे अपना डेटा मेंटेन करते थे इन ट्रेडिशनल वेज, ठीक है? मॉडर्न वे में क्या होता है कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक वे में, ई वे में हम अपना रिकॉर्ड्स यहाँ पे मेंटेन करेंगे। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब आप इंस्टॉल कर लोगे अपने सिस्टम के अंदर, तो उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऑलरेडी आपको मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, 6 से 7। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेस, वन नोट पब्लिशर एंड एक्सेट्रा। तो इसके बाद इसमें लिखा है कि जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो इजीली मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों पे फिजिबल है, दोनों पे इजीली वर्क कर सकता है, ठीक है? उसके बाद आता है हमारा एक्सेल प्रोवाइड्स अ पावरफुल प्लेटफॉर्म फॉर डेटा एनालिसिस, कैलकुलेशन एंड विजुअलाइजेशन। एक्सेल के अंदर आप इजीली डेटा एनालाइज कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन सेट कर सकते हैं, अपने डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरों को, अपने सीनियर्स को प्रेजेंट कर सकते हैं फॉर टेकिंग बिजनेस डिसीजंस ऑन रियल टाइम टू गेट अचीव आवर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली। Second point is data organization and management. Excel allows user to organize data into rows and columns, making it easy to sort, filter and manage large data set. सो एक्सेल के अंदर क्या होता है, हम अपना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं रोज एंड कॉलम्स में, जो ईजी करता है कि हम अपने डेटा को सॉर्ट भी कर सकते हैं, फिल्टर भी कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं अपने लार्ज डेटा सेट को। थर्ड इज formulas and functions. It offers a vast variety of built-in formulas and functions for performing complex calculation, statistical analysis and data manipulation. मतलब एक्सेल के अंदर आपके पास काफ़ी तरीके के काफ़ी वैरायटी में फंक्शंस मिलेंगे, फॉर्मूलाज मिलेंगे, जिसकी हेल्प से आप अपना लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को या कैलकुलेशंस को कर सकते हैं इजीली। तो फार्मूलाज एंड फंक्शंस का बेसिकली मतलब क्या होता है कि फार्मूला का मतलब एक फार्मूला इज अ यूजर ओरिएंटेड एक्सप्रेशन एंड फंक्शन इज अ इनबिल्ट फंक्शन विच इज ऑलरेडी अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। फार्मूला एक तरीके का एक्सप्रेशन होता है जो कि एक यूजर अपने कस्टमर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देता है अपने रिजल्ट को
पाने के लिए, जैसा उसको रिजल्ट चाहिए। फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शन एक ऑलरेडी इनबिल्ट रहता है अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। वी हैव टू जस्ट इट फाइंड। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर वो ऑलरेडी इनबिल्ट रहता है, हमें जस्ट उसको यूज़ करने की ज़रूरत रहती है, ठीक है? तो किस सिचुएशन में कौन सा फंक्शन यूज़ होगा, तो उसके लिए आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है उस चीज़ का। एक-एक करके हम फंक्शंस भी कवर करेंगे लेटर। उसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन। एक्सेल प्रोवाइड्स वेरियस चार्ट एंड ग्राफ ऑप्शंस एनेबलिंग यूजर टू क्रिएट विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेजेंटेशन। एक्सेल के अंदर हमारे पास डेटा विजुअलाइजेशन के लिए काफ़ी सारे ग्राफ एंड चार्ट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसका यूज़ करके आप अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने डेटा एनालाइज कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं अपने सीनियर्स को, हायर ऑफिशियल्स को, फॉर टेकिंग करेक्ट बिजनेस डिसीजंस, ठीक है? उसके बाद आता है हमारा फोर्थ फिफ्थ पे, pivot tables and pivot charts. These tools help summarize, analyze, and present data in a more interactive and dynamic way, useful for discovering trends and insights. Same फोर्थ पॉइंट की तरह। अभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या होता है कि हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल ऑप्शन या फीचर अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट। अगर आपका डेटा सेट काफ़ी ज़्यादा है, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख या उससे भी ज़्यादा, तो आप उसको क्या करोगे? आपको व्हेन यू वांट टू सी द शॉर्ट when you want to have a short summary, like a snapshot, like vertical wise, date wise, month wise, yearly wise, agent wise, representative wise, anything can be, it can be anything. सो वो डेटा एनालाइज करने के लिए पाइवट टेबल का हम यूज़ करते हैं। पाइवट टेबल से काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं और वो एक समरी, ऐसा समरी व्यू दे देता है जिससे कोई भी यूज़र, कोई भी मैनेजर, कोई भी डिसीजन मेकर इजीली उस डेटा को अंडरस्टैंड कर सकता है, इनसाइट्स को रीड कर सकता है फॉर टेकिंग द एक्शन अगेन। नेक्स्ट द लास्ट बट नॉट लिस्ट इज ऑटोमेशन मैक्रोस। Automation and macros. Excel supports automation through VBA, which is Visual Basic for Applications, allowing user to create macros that automate repetitive tasks and enhance efficiency. एक्सेल के अंदर एक और फीचर होता है हमारा, दैट इज कॉल्ड VBA, विच इज ऑल्सो नोन एज विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। विजुअल बेसिक एप्लीकेशन हमारा बेसिकली यूज होता है, हमारा अगर कोई भी डेली रिपीटेटिव टास्क है जो हम डेली बेसिस पे एक ही टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, आपके पास कोई मास्टर डेटा है जिसका हेडर सेम है, डेली बेस पे आप क्या करते हो? सिर्फ उसमें नीचे डेटा ऐड करते चलते हो डेली बेसिस पे। तो ये डेली रिपीटेटिव टास्क को रिड्यूस करने के लिए, ह्यूमन इंटरवेंशन कम करने के लिए या टाइम रिड्यूस करने के लिए, कॉस्ट सेव करने के लिए, ह्यूमन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, यू कैन यूज दिस VBA फंक्शन टू ऑटोमेट योर टास्क। आप अपना टास्क ऑटोमेट कर सकते हो। ये अपने आप स्टेप्स आप इसको दोगे, ये अपने आप अपना काम करेगा और ऑलरेडी ऑटोमेटिकली डेटा ही अपने आप ऐड करते चलेगा, ठीक है? हमें बस इंस्ट्रक्शंस देने की देर रहती है इसमें। तो हमें ये हमारा इंट्रोडक्शन फेज कवर हुआ है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांटेजेस। फर्स्ट पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एडवांटेजेस क्या क्या होता है, क्या क्या फीचर्स है हमारे पास यूज़ करने के लिए, वो हमें अब पता चलेगा। माइक्रोसॉफ्ट कोई भी एप्लीकेशन अदर देन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कोई भी एप्लीकेशन को मैं या आप तभी यूज़ करोगे जब मुझे उसका फ़ायदा पता चलेगा, फीचर पता चलेगा या एडवांटेज पता चलेगा कि उसका यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, ठीक है? अगर उसका फ़ायदा नहीं है या उसमें अगर ऐसा कोई फीचर नहीं है जो मेरे काम का नहीं है बेसिकली, तो मैं उसको यूज़ नहीं करने वाला। तो आपको बेसिकली पता रहना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एडवांटेजेस क्या क्या हैं, दैट विल बी हेल्पिंग यू टू क्रिएट योर ओन डैशबोर्ड रिपोर्टिंग या like this. So the first advantage is Excel allows for the organization, storage and manipulation of data in various data formats, including numbers, text, date and formula. So ये कह रहा है कि हर कोई ऑर्गेनाइजेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ करता है टू स्टोर एंड मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट। डेटा को स्टोर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और डेटा किसी भी फॉर्मेट में हम स्टोर कर सकते हैं। नंबर फॉर्मेट में भी हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्मेट में भी हो सकता है, डेट फॉर्मेट में भी हो सकता है, ठीक है? और फार्मूला भी हो सकता है। तो ये इसका फर्स्ट एडवांटेज होता है। सेकंड इज इट प्रोवाइड्स पावरफुल टूल्स लाइक पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट एंड डेटा एनालिसिस फीचर दैट enables यूजर टू परफॉर्म इन डेप्थ एनालिसिस एंड जनरेट इनसाइट्स। सेकंड एडवांटेज हम इसका बेसिकली ये है कि इसके अंदर जो पावरफुल ऑप्शन है, जो मैंने आपको बताया, पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट, उसके थ्रू हम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। इन डेप्थ आप जनरेट कर सकते हो बिजनेस इनसाइट्स, ट्रेंड्स निकाल सकते हैं, फिर उसको आप आगे प्रेजेंट करोगे to know the loopholes and to take the corrective business actions on real time. Uh,
to achieve the our team objective or overall organizational objective. Okay, so this is second advantage. Third advantage is users can automate repetitive tasks and complex workflows using Excel VBA, which is Visual Basic Application, to save time and reduce errors. जो मैंने आपको पहले बताया, थर्ड एडवांटेज क्या है कि एक रिपीटेटिव टास्क, डेली रिपीटेटिव टास्क अगर अगर मैं एक ही कोई टास्क डेली कर रहा हूँ, तो उसको ख़त्म करने के लिए या उसको कम करने के लिए मेरा मेरा ह्यूमन इंटरवेंशन उस पे कम करने के लिए मैं वीबी ऑप्शन का यूज़ करूँगा, उसको ऑटोमेट करूँगा, तो मेरा उसमें टाइम सेव होगा। ठीक है? ऐसे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और रिज़ल्ट्स भी हमारे इंक्रीज़ होते रहते हैं। आप बेसिकली टैट कम कर रहे हो अपने प्रोसेस का, जो कि अच्छी बात है। Fourth option is Excel has an extensive range of inbuilt function and formulas for calculation, logical operation, text manipulation, and more simplifying complex computations. फोर्थ एडवांटेज ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक्सेल के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, काफ़ी सारे फॉर्मूलाज होते हैं और फंक्शंस होते हैं, इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं अराउंड 450 प्लस एज ऑफ नाउ। सो जिसकी हेल्प से आप अपने लार्ज लॉजिकल ऑपरेशंस, टेक्स्ट मैनिपुलेशन और जो भी आपका कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है या जो भी आप कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना चाहते हो, वो यू कैन इजीली डू दिस विद दिस इनबिल्ट फंक्शंस एंड फार्मूलाज एज पर योर कस्टम रिक्वायरमेंट। Fifth advantage of Excel is Excel charting and graphing capabilities allows users to create various types of visualization, makes it easier to interpret and present data. एक्सेल के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं अपने डेटा को विजुअलाइज करने के लिए चार्ट और ग्राफ के थ्रू। हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, हम हर काफ़ी अलग अलग तरीके की विजुअलाइजेशन इसमें बना सकते हैं टू रिप्रेजेंट टू द यूज़र एंडली या कस्टमर्स को या अपने लीडर्स को। ठीक है? Last but not least is it can import data from various sources such as database, web service and other files formats like CSV, text, PDF and others. आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अदर फॉर्मेट्स, मतलब कि सपोज कि अगर आप एक तरीका होता है कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अपना हार्डकोर डेटा एंट्री करके आप अपना डेटा मेंटेन कर रहे हो, मास्टर रिकॉर्ड आपने मेंटेन कर रखा है। बट इन केस अगर आपका मास्टर डेटा या रिकॉर्ड या कोई टेबल डेटा आपका कोई बाहर पड़ा हुआ है किसी और फॉर्मेट में अदर देन एक्सेल, सीएसवी फाइल में पड़ा हुआ है, पीडीएफ फॉर्मेट में पड़ा हुआ है या सीएसवी, पीडीएफ और टेक्स्ट फॉर्मेट में पड़ा हुआ है, कहीं बाहर कहीं भी पड़ा हुआ है, ठीक है, आपके सिस्टम में, तो आप उसको अपने एक्सेल के अंदर, क्योंकि आपको विजुअलाइजेशन अपने एक्सेल में ही करनी है, आपको डेटा मैनिपुलेट, डेटा जो आप शॉर्ट करोगे या डेटा आप जो भी क्लीन करोगे वो आप एक्सेल में ही करोगे। ठीक है? तो इन केस अगर आपका डेटा किसी और फॉर्मेट में सीएसवी, टेक्स्ट या पीडीएफ फॉर्मेट में पड़ा हुआ है, तो आप उसको इजीली एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हैं। वो भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल रहता है। ठीक है? प्रोसीड करते हैं आगे। ये हमारे हो गए एडवांटेजेस। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की लिमिटेशंस क्या-क्या होती हैं? First limitation is Excel can struggle with a very large data set, often leading to slow performance or crashes when leading handling millions of rows and complex calculation. ये क्या बोल रहा है, एक्सेल में आप ज़्यादा रोज एंड मिलियंस ऑफ रोज एंड कॉलम्स आप इंसर्ट नहीं कर सकते। एक्सेल की अपनी एक लिमिटेशन है कि अगर आप उसमें सपोज कि 15 लाख या 20 लाख रोज या कॉलम्स इंसर्ट करना चाहते हैं, आपके पास काफ़ी ह्यूज डेटा है, काफ़ी साल पुराना डेटा है या काफ़ी डोमेन लेवल पे या बिजनेस लेवल पे, बिजनेस हेड लेवल पे, हेड ऑफिस लेवल पे डेटा पड़ा हुआ है, तो आप उसको यू कैन नॉट इम्पोर्ट और मैनेज ऑल द हेड ऑफिस लेवल डेटा इन दिस एक्सेल फाइल। ओके, सो एक्सेल की उतनी लिमिटेशन या कैपेबिलिटी नहीं होती है कि आप अपना 10 लाख या सॉरी 15-20 लाख रोज इसमें इंसर्ट कर दें या उतने कॉलम्स इंसर्ट कर दें। इसकी अपनी एक लिमिटेशन है, वो मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट कितने कितने इसमें रोज कॉलम्स और सेल्स होते हैं। Next limitation, second limitation is Excel supports collaboration, but it lacks advanced real-time collaboration feature found in other tools like Google Sheet. Multiple users editing the same file simultaneously can sometimes lead to conflicts or data overwriting. एक्सेल का सेकंड लिमिटेशन क्या है कि एक्सेल को आप किसी एक यूज़र या 2 यूज़र को एक टाइम पे शेयर कर सकते हैं या 3 या 10 यूज़र को एक बार में शेयर कर सकते हैं, ठीक है? उस लिंक पे वो एडिट कर सकते हैं। अगर वो एक टाइम पे ज़्यादा यूज़र्स जितनों को आपने भेजा है, आप ज़्यादा यूज़र्स को नहीं भेज सकते, लेकिन फिर भी आपने मैक्सिमम जितने यूज़र्स को भेजा है, वो एक टाइम पे अगर डेटा को मैनिपुलेट करेंगे, उसमें कोई छेड़खानी करेंगे या डेटा ऐड करेंगे, तो इट विल लीड टू स्लो द परफॉर्मेंस ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट।
ठीक है? वो परफॉर्मेंस स्लो कर देगा। अब इसके कंपैरिज़न में क्या है कि जैसे गूगल शीट होता है, गूगल शीट एक एक लाइव स्प्रेडशीट है जिसमें कितने भी यूज़र्स लाइव रियल टाइम बेसिस पे अपना डेटा ऐड कर सकते हैं, अपना ट्रेंड शो कर सकते हैं, ठीक है? एक ही टाइम पे और उसकी परफॉर्मेंस कभी स्लो नहीं होती। तो ये उसकी एक एक्सेल की लिमिटेशन है कि गूगल शीट पे काफ़ी सारे यूज़र्स एंगेज हो सकते हैं, लेकिन एक्सेल पे नहीं हो सकते रियल टाइम बेसिस पे, ठीक है? Second limitation is Excel is prone to human errors such as incorrect data entry, formula errors, and or accidental data deletion, which can compromise data integrity. ठीक है। थर्ड लिमिटेशन ये क्या बोल रहा है कि एक्सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं ह्यूमन एरर के, क्योंकि कोई भी इनकरेक्ट डेटा एंट्री कर सकता है, फॉर्मूला में एरर हो सकता है, ये गाइड नहीं करेगा आपको कि आपका फॉर्मूला गलत है, आपको खुद ही ठीक करना पड़ेगा। आपने गलत लगा दिया तो वो फिर वो गलत ही रह जाएगा। अगर आपने ठीक नहीं लगाया तो इट विल नॉट गाइड यू। अगर आपने इनकरेक्ट डेटा एंट्री किया तो ये आपको सजेशन नहीं देगा या आपको गाइड नहीं करेगा या आपको कोई गाइडलाइंस नहीं देगा कि आपने यू हैव इंसर्टेड इनकरेक्ट डेटा ओवर हियर। अगला एक्सीडेंटल डिलीशन ऑफ डेटा, मतलब कि चांसेस एक्सेल में ये भी रहते हैं कि एक्सीडेंटली अगर किसी यूजर ने ये पूरा डेटा डिलीट कर दिया तो आपको यू कैन नॉट रिकवर द डेटा अगेन। एक्सीडेंटली डेटा डिलीशन के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है? और डेटा इंटीग्रिटी के मामले में ये काफ़ी स्लो है, इसको लोग प्रेफर नहीं करते। ये इसकी लिमिटेशन हो गई थर्ड। फोर्थ इज एक्सेल इज नॉट ए फुल फ्लेजेड डेटाबेस सिस्टम, सो इट लैक्स एडवांस्ड फीचर्स लाइक कॉम्प्लेक्स क्वेरिंग कैपेबिलिटीज एंड हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स डेटा रिलेशनशिप लाइक एसक्यूएल डेटाबेस। एसक्यूएल मीन्स स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज डेटाबेस। ये फोर्थ लाइन क्या बोल रहा है कि एक्सेल एक फुल फ्लेजेड डेटाबेस सिस्टम नहीं है। अब जैसे एसक्यूएल है, एसक्यूएल एक लैंग्वेज होती है जिसमें हम लाइव डेटाबेस या डेटा वेयरहाउस कनेक्ट करके आप क्वेरीज उसमें रन कर सकते हैं कि मुझे इतने सारे कॉलम्स चाहिए, ये आप उसमें आप कंडीशंस लगाएंगे, उसमें आप हैविंग वेयर बाय सेलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर बाय सॉर्ट भी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। वहाँ पे आप लाइव डेटा वेयरहाउस से डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ऑप्शन एक्सेल में नहीं होता। एक्सेल में सिंपल आप डेटा मैनेज कर रहे हो या अगर आपका डेटा कहीं बाहर किसी और फॉर्मेट में पड़ा हुआ है तो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ये इसका लिमिटेशन हो गया। नेक्स्ट इज एक्सेल डेटा सिक्योरिटी फीचर्स आर रिलेटिवली बेसिक विच मेक्स इट less suitable for handling sensitive and confidential information without any additional production। मतलब एक्सेल में आप कोई कॉन्फिडेंशियल या ज़्यादा सेंसिटिव डेटा स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिक इसका बेसिक फीचर रहता है सिक्योरिटी का, जिसमें आप सिंपल पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हो या कोई सेल लॉक कर सकते हो, कॉलम रो या किसी रेंज को लॉक कर सकते हो, ठीक है, विच इज़ ब्रेकेबल, ठीक है, वो ब्रेक हो सकता है और ओवरराइड कोई भी कर सकता है। इसलिए ये एक तरीके का बेसिक सिक्योरिटी इसमें फीचर रहता है, जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा जो कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डेटा रहता है या सेंसिटिव डेटा रहता है उसके लिए ये नहीं बना, आप इसमें इंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है? आपको नहीं करना चाहिए, बेसिकली प्रैक्टिस में आप ये रखिए। सो द लास्ट यहाँ पे मैंने आपको एग्जैक्ट काउंट बता रखा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एग्जैक्ट रोज कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं एंड सेल्स कितने हैं। रोज कितने हैं? टोटल 10,48,576 रोज पर वर्कशीट, ठीक है? आप जब भी कोई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं तो उसको जब जब आपको स्टार्टिंग में जब कोई इंटरफेस दिख रहा होता है तो दैट इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट वर्कबुक। एक वर्कबुक के अंदर काफ़ी सारी वर्कशीट्स हो सकती हैं, ठीक है? एक वर्कबुक के अंदर काफ़ी सारी वर्कशीट्स हो सकती हैं, अराउंड 120 टू 100 टिल तक हो सकती है मैक्सिमम। तो एक वर्कशीट के अंदर 10,48,576 रोज़ होती हैं, इतने मैं रिकॉर्ड्स उसमें रख सकता हूँ। इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते। अगर आपका डेटा 10 11 लाख 15 लाख का है, 20 लाख का है या 40 लाख का है तो वो आप एब्सोल्यूटली इसमें नहीं आने वाला। कॉलम्स पे आते हैं, कॉलम्स एग्जैक्ट कितने हैं इसमें? 16,384 कॉलम्स पर वर्कशीट। एक वर्कशीट में कितने कॉलम्स होते हैं मैक्सिमम? 16,384। 16,384 अगर मान लीजिए कि मेरा अगर आपका कॉलम 20, 50, 100, 1000, 2000 तक है तो चलेगा, ठीक है? वो आप इसमें ईज़िली स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा कॉलम्स हैं, अगर आपने ज़्यादा लाइव डेटाबेस उठाया है तो अगर उसमें ज़्यादा कॉलम्स है, इससे भी ज़्यादा, तो इसमें आप स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है? आपका डेटा इसमें स्टोर भी नहीं होगा और परफॉर्मेंस तो डेफ़िनिटली स्लो हो जाएगी। अगला आता है सेल्स पे। सेल्स मीन्स कि इट इज़ अ इंटरसेक्शन पॉइंट वेयर द रोज़ एंड कॉलम्स इंटरसेक्ट, ठीक है? ये एक सेल होता है जो कि एक रेक्टेंगल शेप में होता है एक्सेल में, वो मैं आपको शो करूँगा बाद में। सेल्स कितने होते हैं पूरे एक्सेल में? 17,179,000
इट इज़ अराउंड 17 खरब 17 करोड़ 98 लाख 69,184। हम्म, ओके। 17 खरब 17 करोड़ 98 लाख 69,184 ओवरऑल सेल्स रहते हैं इसमें, मतलब कि जो छोटे छोटे रेक्टेंगल शेप होते हैं उसमें, वो ओवरऑल 17 खरब 17 करोड़ 98 लाख 69,184 होता है, अराउंड 18 मिलियन। इसके बाद आते हैं, लिमिटेशंस कवर कर लिया हमने। अब आता है हिस्ट्री पार्ट पे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बेसिकली हिस्ट्री क्या है, कहाँ से वो स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट हुआ, और राइट नाउ अभी करंटली वर्जन क्या चल रहा है। तो इसका ओरिजिन्स आप देखोगे तो ये स्टार्ट हुआ है फ्रॉम 1982 ओरिजिन्स। एक्सेल was initially developed by Microsoft under the name Excel 1.0 and was first released for the Apple Macintosh in 1985। इसका फर्स्ट वर्जन था एक्सेल 1.0 जो कि रिलीज हुआ था 1985 में। किसके लिए? एप्पल मैकिनटोश के लिए। ठीक है, एप्पल मैकिनटोश मतलब कि वो एप्पल डिज़ाइन कंपनी के लिए उन्होंने रिलीज़ किया था अपने लिए। इट वाज़ डिज़ाइन टू बी अ मोर इंट्यूटिव अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स। ठीक है। सेकंड वर्जन क्या है आपका? एक्सेल 2.2 1987 में आया, एक्सेल 3.2 1990 में, एक्सेल 4.0 1992, फिर 1995 में 95 वर्जन, एक्सेल 97 वर्जन 1996 में, देन एक्सेल 2003 में, एक्सेल 2007 में, 2013 में। उसके बाद अभी जो आपका चल रहा है करंट में एक्सेल दो 365, जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन एज ऑफ नाउ अभी यूज़ कर रही है, जो कि इस 2016 में आया और टिल डेट अभी तक चल रहा है, चलता हुआ आ रहा है। फिर उसके बाद आता है उसके बाद आता है ये हमने कवर कर लिया है। उसके बाद हमारा ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है कुछ। दैट इज फर्स्ट इज डेटा। डेटा क्या होता है? बेसिकली डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन गेदर्ड बाय ऑब्जर्वेशंस, मेजरमेंट, रिसर्च और एनालिसिस। दे मे कंसिस्ट ऑफ फैक्ट्स, नंबर्स एंड नेम्स, फिगर्स और इवन डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स। Data is organized in the form of graph, chart, and table. Data is distinct pieces of information usually formatted in a special way. Data can be measured, collected, reported, and analyzed, whereupon it is often visualized using graph, images, and other analysis tools. Raw data may be collection of numbers and characters before it's been cleaned and corrected by researchers. It must be corrected so that we can remove outliers, instruments, or data entry errors. बेसिकली डेटा क्या होता है? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स एंड फिगर्स। रो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको जो होता है उसको हम डेटा बोलते हैं, सिंपल फॉर्म में। बाकी सेल क्या होता है? इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सेल वर्कशीट्स। ठीक है। इट इज़ अ स्मॉल यूनिट ऑफ एक्सेल स्प्रेडशीट। एवरी वर्कशीट इज मेड अप of thousands of rectangles which are called cells. A cell is the intersection of a row and column. अब ये सेल क्या होता है? जो मैंने आपको बताया कि इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सेल वर्कशीट। एक एक्सेल वर्कशीट का ही एक ऑब्जेक्ट होता है। इट इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है। एक्सेल वर्कशीट का ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ रेक्टेंगल्स होते हैं। दैट इज कॉल्ड सेल्स। ए सेल इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम। जहाँ पे सेल क्या होता है? जहाँ पे आपका कॉलम एंड रो इंटरसेक्ट करेगा, वो इंटरसेक्शन पार्ट आपका कहलाता है सेल। ठीक है। एग्जैक्ट सेल्स एक वर्कशीट के अंदर कितने होते हैं वो काउंट मैंने आपको दे रखा है, 17 मिलियन अराउंड। 17 खरब 17 करोड़ 98 लाख 69,184। रो पे आते हैं। ए रो इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सेल्स। ईच रो हैज अ यूनिक नंबर दैट आइडेंटिफाइज इट। It refers to an order in which objects are placed alongside or horizontally. The arrangement runs from top to bottom. अब रोज क्या होता है कि ये एक तरीके का हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ रिकॉर्ड्स होता है, मतलब कि हम अपना डेटा अगर हॉरिजॉन्टली मेंटेन कर रहे हैं, दैट इज अ रो। ठीक है। और रो हमेशा टॉप टू बॉटम मूव होता है। ठीक है, टॉप टू बॉटम मूव होता है, क्योंकि रोज की मैपिंग, रोज की जो टैगिंग हो रखी थी नंबर में हो रखी होती है एक्सेल वर्कबुक में, 1 2 3 4 5 से कैसे टॉप टू बॉटम वो मूव होता है। तो रोज की हमने बात कर ली। अगले आता हूँ कॉलम पे। कॉलम कैन बी डिफाइंड एज अ वर्टिकल डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी। द अरेंजमेंट रन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और कॉलम क्या होता है? कॉलम में बेसिकली जस्ट अपोजिट टू रो। अगर आपका डेटा वर्टिकल वे में ऑर्गेनाइज है, आपका डेटा वर्टिकली रखा हुआ है, तो उसको कॉलम बोलते हैं। और द अरेंजमेंट रन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कैटेगरी कॉलम जो होता है हमारा लेफ्ट टू राइट रन होता है, मतलब कि इसकी जो टैगिंग होती है, आप हेडर देखोगे कॉलम्स की तो A B C D और ये जाती है X F D तक।
ठीक है, 16,384 जितने हमारे कॉलम्स होते हैं। तो कॉलम्स आपका मूव होता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट मूव होता है। एग्जैक्ट कॉलम्स कितने होते हैं? 16,384 कॉलम्स पर वर्कशीट लेवल फ्रॉम ए से स्टार्ट होता है एक्स एफ डी तक, एंड लास्ट कॉलम नेम है। यहाँ पे हमारा एंड हो गया सेशन। ये हमारा थर्ड सेशन था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे, और अगला सेशन मैं आपके लिए बड़ी जल्दी लाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, विल कनेक्ट यू सून, ओके, थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग।